डियर स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा भी बच्चों, आज आपके साथ 9th क्लास इंग्लिश इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025 फुल इंग्लिश बुक गेस्ट पेपर सन 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इन तमाम क्वेश्चंस को शेयर करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 होता है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप्स ऑफ लैंड अरेबिया इज। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच एबिलिटी वेयर द अर्थ फेमस। क्वेश्चन नंबर 3, what was the first revelations। क्वेश्चन नंबर 4, where is Makkah situated। क्वेश्चन नंबर 5, why was Holy Quran sent in Arabic। चैप्टर नंबर 2 में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, who will you define patriotism। Question number 3, as a citizen of Pakistan, what are duties toward your country। Question number 3, what are the qualities of a patriot। Question number 4, who offers sacrifice for the country। Question number 5, what are your duties toward your country। चैप्टर नंबर 3 में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, हु डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल्स अनचेक्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। चैप्टर नंबर 4 के अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, why was Abu Jahl furious। Question number 2, why was Hazrat Abu Quhafa worried। Question number 3, who did Hazrat Asma console her grandfather। Question number 4, who was Hazrat Abdullah bin Zubair radiyallahu ta'ala anha। Question number 5, what message do you get from the life of Hazrat Asma। चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 का कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं क्योंकि उसमें से समरी आनी है 5 नंबर की। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हु मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज नेशन। क्वेश्चन नंबर 2, हु कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द कायद कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन। क्वेश्चन नंबर 4, what can be the possible solution to our present problems। चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, who was appointed as architect of the mosque। Question number 2, who constructed Mosque Sophia। Question number 3, who does the interior of mosque look। Question number 4, why Sultan Ahmed Masjid is also known as Blue Masjid। Question number 5, where is the Royal Man situated। Chapter number 9 important short question, question number 1, why is an ICU in a hospital। Question number 2, why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her। Question number 3, describe the some qualities of the nurse। Question number 4, why did the nurse disagree with the doctor point of views। Chapter number 10 के important short question, question number 1, what are the effect of drug addiction। Question number 2, what are the causes of drug addiction। Question number 3, what is the role of counseling in preventing drug addiction। Question number 4, are drug addicts aware of the dangers of drug। Chapter number 11 important short question, question number 1, how do you define noise pollution। Question number 2, who is transport a source of noise pollution। Question number 3, why noise hazardous for human health। Chapter number 12 की important short question, question number 1, why has she no time to waste in longings। Question number 2, who was Helen Keller। Question number 3, why makes you feel that the author is sad and depressed। Question number 4, why has she no time to waste in longings। तो ये थे 12 चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर दफ़ा ऑल पंजाब बोर्ड, KPK बोर्ड और फेडरल बोर्ड के अंदर बार बार रिपीट किए जा रहे हैं।
आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन में से आपको सन 2025 के पेपर में फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम क्वेश्चंस आएंगे। और ये क्वेश्चंस करने कहाँ से हैं? जो हेल्पिंग बुक्स हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स ने हेल्पिंग बुक्स से तैयार कर लेने हैं, या पासपोर्ट पेपर्स में उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर लिखे होते हैं, तो आपने मॉडल पेपर से इन क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर लेने हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की तरफ। तो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। इंग्लिश से उर्दू पैराग्राफ मैंने कैसे लिखे हैं वो देख लें। मैंने 5 से 6 लफ्ज़ पहले उस पैराग्राफ के पहली लाइन के लिखे हैं और एंड वाली लाइन के 5 से 6 लफ्ज़ लिखे हैं, और सेंटर मैंने डॉट लगा के मैंने उस पैराग्राफ को शो किया कि ये पैराग्राफ ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे देख लें क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के अंदर इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ नंबर 1, इन द 5th and 6th सेंचुरीज़। आगे मैंने पूरी लाइन, अगर आपने अंदर से कुछ चीज़ स्किप करनी है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने डॉट लगाने होते हैं। तो मैंने 6 सेंचुरीज़ के बाद मैंने डॉट लगाए, उस लाइन को शो किया कि इसके आगे कुछ लफ्ज़ हैं, और एंड पे मैंने उसके एंड वाली लाइन के अंदर से मैंने 4-5 लफ्ज़ एंड वाली लाइन के लिख दिए, जैसे इनटू द लाइफ ऑफ फेथ, ताकि आपको पता चल सके कि फर्स्ट ये पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ का एंड है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब सारे पैराग्राफ मैंने ऐसे लिखे हुए हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन पैराग्राफ को अच्छे तरीके से भी तैयार कर लेना है। पैराग्राफ नंबर 2, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम डॉट विद प्रॉफिट hot. Question number paragraph number 3, the whole of divine message dot light of faith and divine bliss. Paragraph number 4, Arabia is a land of unparalleled dot royal from the Red Sea. यूनिट नंबर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ देख लें। तो पैराग्राफ नंबर 1, patriotism mean love for the dot a commendable quality. Paragraph number 2, patriotisms give people the strength dot protection of these values. Paragraph number 3, patriotism therefore is not just dot my native land. Paragraph number 4, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was dot one united and strong nation. Chapter number 3, important paragraph. Paragraph number 1, media helps people to share dot to switch on the television. Paragraph number 2, student 4th, can we say that the word dot teacher? Yes, you are right. Question paragraph number 3, media has also become a mouthpiece dot you to sum up the discussion. Chapter number 4, important paragraph. Paragraph number 1, the preparation for this journey zatun natakin by the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. इसके बाद है पैराग्राफ नंबर 2, ओ ग्रैंडफादर हजरत अबू कहाफा dash is wealth at home. Paragraph number 3, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his close companion dot capture died or live. Paragraph number 4, Hazrat Asma will always dot beacon of light for all of has. Chapter number 6 के important paragraph. Paragraph number 1, the entire journey of the great leaders dot distinctive outlook of life. Paragraph number 2, today the Qaiz Pakistan is facing dot we are bound to success. Paragraph number 3, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation that dot and strong nation. Paragraph number 4, Qaid-e-Azam was a man of dash collectively and individually. Paragraph number 5, the ideology of Pakistan was based dot will be strongly resisted. Unit number 7, paragraph number 1, the masjid as spacious forecourt dash face of the divine power.
Paragraph number 2, the most important element in the interior dash with jade and roses. Paragraph number 3, in the evening a large number of dash monuments of the word आना था. Paragraph number 4, the Sultan Ahmed Masjid is one dash most popular tourist attractions. इसके बाद है paragraph number 5, the upper level of the interior and adorned dash covered with the carpet. Question paragraph number 6, blue masjid reflects or architectural dash majesty and size. Unit number 9, paragraph number 1, I stood still until her family dash helped me win a lost battle. Paragraph number 2, I continued to work on Hira dash all not lost. The paragraph number 3, she and her family had entered dash, I was proud to be a nurse. Paragraph number 4, I was upset the device to leave dash spoke try once for her. Paragraph number 5, I was sent on a 3-month training dash to ask what happened. तो जो पैराग्राफ मैं बता रहा हूँ, आप पासपोर्ट पेपर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पासपोर्ट पेपर उठाएं और चेक करें क्या यही पैराग्राफ बार बार रिपीट किए जा रहे हैं कि नहीं. तो आप तमाम स्टूडेंट्स को यही पैराग्राफ उधर भी नज़र आएंगे कि बार बार यही पैराग्राफ रिपीट किए जा रहे हैं. तो ये उर्दू आपने कहाँ से करनी है, ये भी आपको हेल्पिंग बुक के ऊपर से मिल जाएगी. ये बहुत भी ज़्यादा वो बोर्ड के अंदर लाइन देना तो आपको ट्रांसलेशन की 5 लाइनें देगा, 5 से 6 लाइनें आपको पैराग्राफ की देगा कि जिसकी आपने उसे ट्रांसलेशन करके देनी है. और ट्रांसलेशन में एक गलती के 1 मार्क्स कटे जाते हैं, तो ये आपने ध्यान से याद रखना है. और ये भी आपने ध्यान रखना है कि किस लाइन के ऊपर उसने कामा डाला है और कहाँ उसने डॉट लगाया है. तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास तरीके से ध्यान रखना है. अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 के पैराग्राफ नंबर 1, ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस डैश हेल्थी एंड मीनिंगफुल लाइफ. Chapter number paragraph number 2, drug addiction is a common problem dash William cocaine and alcohol. The 3 paragraph, drug addiction is caused by the environmental dash. Chapter number 11, paragraph number 1, noise pollution is defined as any dash mind and body of humans. Paragraph number 2, noise pollution and causes not only dash mental and physical tension. Paragraph number 3, another sources of noise pollution in dash by causing mental fatigue. Paragraph number 4, noise pollution is a serious issue that quieter and peaceful place to live in. Chapter number 12, important paragraph, paragraph number 1, the in stories the doomed hero is usually dash witness to everything they do. Paragraph number 2, the next day, the second day of sight dash awakens the sleeping health earth. Paragraph number 3, this day I should devote to a st dash messy comes of course. इसके बाद है 4 पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. इस पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है. Was it possible I asked myself dash after her winter sleeps. Paragraph number 5, oh and then I have tested my dash at the seeing little. तो और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और जो पैराग्राफ ये मैंने बताए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं. अगर आप क्या नाम लेते हैं बुक उठा के चेक करें तो हर चैप्टर में 12, 10, 9, 8, 14 इतने पैराग्राफ बनते हैं ट्रांसलेशन के, जिनमें से हर चैप्टर में से मैंने 4 से 5 पैराग्राफ उठा के आपके साथ शेयर किए हैं. अगर इन पैराग्राफ में से आपने 1-2 पैराग्राफ छोड़ दिया और उन्हीं जो पैराग्राफ आपने छोड़े हैं उन्हीं पैराग्राफ में से अगर बोर्ड में पेपर आ गया तो फिर इस चीज़ के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे. लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप स्टूडेंट्स ने इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है. अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट
लेटर की तरफ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है लेटर नंबर 1, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। लेटर नंबर 2, राइट अ लेटर टू योर फादर asking him about the health of your mother. Letter number 3, write a letter to your mother about the test you have just taken. Letter number 4, write a letter to your sister congratulating her on her success in the exams. इसके बाद है लेटर नंबर 5, write a letter to your brother about the importance of science subjects. Letter number 6, write a letter to your sister thanking her for her gift. Letter number 7, write a letter to your friend condoling the death of his mother. Letter number 8, write a letter to your father requesting him to send you some extra funds for payment of hostel dues. इसके बाद है important stories, most important stories है। मोस्ट जो उसकी कहते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट से जो हर दफ़ा आ रहे हैं वो स्टोरीज़ है, वो देख लें। सबसे पहले तो पहली स्टोरी है अ फुलिश स्टेज। दूसरी स्टोरी अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डेट। स्टोरी नंबर 3, ईस्ट मेक्स वेस्ट। स्टोरी नंबर 4, ग्रीड इज़ अ कर्स। स्टोरी नंबर 5, द टेल एंड द एलिफेंट्स। तो ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं। इसके बाद है 2 इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़, लेकिन आपके टोटल आपकी मिला के 7 स्टोरीज़ बनती हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट ने इन 7 स्टोरीज़ को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इम्पॉर्टेंट स्टोरी में जो स्टोरी नंबर 1 है द बॉय हू कैरिड वॉफ। स्टोरी नंबर 2, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो ये स्टोरी आपको कैसे बोर्ड के अंदर आएगी, तो आपको वो घुमा फिरा के स्टोरी देगा। स्टोरी इन्हीं में से होगी लेकिन आपको टाइटल चेंज करके देगा। कैसे? स्टोरी के अंदर आप देख सकेंगे कि स्टोरी का टाइटल वो चेंज करके देगा, लेकिन स्टोरी आपको घुमा फिरा के टाइटल वो देगा कि स्टोरी वही होगी, लेकिन उसका टाइटल आपको थोड़ा सा ऐसा यूनिक किस्म का देगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को एक दफ़ा घुमाएगा कि ये हमने स्टोरी की है लेकिन इसका टाइटल थोड़ा सा उसने अजीब करके देना है। कैसे? जैसे आप तमाम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यूनियन इज स्ट्रेंथ कि उसके लकड़हारे वाली देखें कि द फार्मर ऑफ 3 सन्स के 3 एक लकड़हारे के 3 बेटे। तो जैसे वो देखें एक और है ग्रीड इज़ अ कर्स, लालची कुत्ते वाली। तो आपको द डॉग भी कह सकता है कि द डॉग इज़ अ कर्स या ग्रीड इज़ अ कर्स। तो आपको डिफरेंट टाइटल्स के ऊपर आपको स्टोरीज़ बनाकर देगा। इसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्रीहेंशन की तरफ। तो सॉल्व कंप्रीहेंशन सबसे पहले देख लें। तो पैसेज नंबर 1 आपने करना है, पैसेज नंबर 3 करना है, पैसेज नंबर 4, पैसेज नंबर 5, पैसेज नंबर 7 और पैसेज नंबर 10 करना है। इसके बाद है अनसॉल्व पैसेज। तो पैसेज नंबर 4, पैसेज नंबर 5, पैसेज नंबर 8, पैसेज नंबर 10 और पैसेज नंबर 11 और पैसेज नंबर 12 आपने सॉल्व करना है। इसके बाद है कुछ क्वेश्चंस के ट्रांसलेट। कुछ क्वेश्चंस मैंने जो कि आपके साथ नहीं शेयर किए वो क्या है कि ट्रांसलेट 5 सेंटेंस उर्दू टू इंग्लिश। आपको 8 सेंटेंस देगा उर्दू के अंदर जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश के अंदर, और हर सेंटेंस 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद है चेंज द वॉइस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उसके बारे में है। और इसके अलावा 2 समरीज़ हैं जो आपको आनी है पेपर के अंदर। एक समरी देगा, या आप समरी लिखें या आप उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें। वो आपको एक पैराग्राफ देगा उधर। जैसे स्टॉपिंग बाय वुड है एक समरी और एक है डैफोडिल, 2 ही समरी हैं। दोनों में से एक फर्स्ट टाइम आ जाएगी और एक सेकंड टाइम, और दोनों छोटी हैं। ज़्यादा चांसेस होते हैं डैफोडिल आने के। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने अगर ज़्यादा वो एक ही समरी याद करनी है तो आप डैफोडिल आप स्टूडेंट्स ने समरी याद कर लेनी है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में ये बताइएगा किन स्टूडेंट्स ने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर को तैयार कर लिया है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।